اندازہ کریں پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے مولا کائنات سے کبھی جھگڑا نہیں کیا. آج کی عورتیں تو شوہر سے منہ چلاتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا منہ کتے کی طرح ہے اور جسم انسان کی طرح ہے, اور ان عورتوں کی زبان جو ہے ان کی اتنی لمبی زبان ہے کہ ان کی زبان پیٹ تک کے جا رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کتے کی منہ والی اور اتنی لمبی زبان والی عورتیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے شب معراج عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی, شوہر کے ساتھ منہ چلا کر کے اپنے شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی. میری بہنوں چونکہ آج عورتوں کا اجتماع ہے, اگر یہاں شوہر حضرات بھی موجود ہوتے تو ان سے بھی باتیں کی جاتی, لیکن چونکہ سامنے آپ موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیریل دیکھ کر کے اپنی زبان کو لمبی مت کرو, فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقل مت کرو. ہماری زندگی ریل نہیں ہے, ہماری زندگی ریل ہے. ریل کو اپنی زندگی کے اندر ریل زندگی میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو, کیونکہ وہاں جیسا دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں. آج کی عورتیں آپ ایسی نہیں ہیں, لیکن دنیا بھر سے اس طرح کی رپورٹ آتی ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے, اس لیے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچے. آج تو حالات یہ ہیں اگر شوہر کی صحت تھوڑی سی گر جائے تو عورتیں دوسروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہو, مفلس ہو, کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کبھی پڑوسی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے, کبھی کسی مالدار کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. اللہ اکبر, یہاں تک کہ بعض کم نصیب عورتیں تو ایسی ہیں کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں, سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے. جب مولا کائنات چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے, مولا مشکل کشا کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی تو اللہ کی راہ میں جان دینے میں دلچسپی تھی. جب وہ جنگوں سے گھر آتے تو زخمی ہو کر کے آتے, مرہم پٹی کیا کرتی تھی. کبھی نہیں کہا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے, کبھی نہیں کہا بچوں کو کپڑے نہیں ہیں, کبھی نہیں کہا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. شوہر سے کبھی زگ نہیں ہوئے, شوہر سے کبھی تک نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ اس وقت ذہن میں آتا ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ آج ہمارے گھروں کے اندر تو ایسا طوفان بپا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو, تو میں نہ ہوتی ہو. مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا, انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی, انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا, صبر سے کام لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ جنگ کی بڑی مصروفیات تھی, مولا مشکل کشا آتے تھے جاتے تھے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کو جنگ سے بڑی دلچسپی تھی, اللہ کی راہ میں وہ جان دینے سے بڑی دلچسپی تھی. آتے تھے جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے, مصروفیت اتنی تھی بیٹھ کے بات کا موقع نہیں ملا. جب جنگ کا ماحول ختم ہوا مولا مشکل کشا گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاطمہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ سرکار فاطمہ الزہرا کا جواب سنو. کئی دن کے بعد شوہر اگر گھر آئے اور کہے کہ کچھ ہے اور وہ چیز نہ ہو تو عورتیں جواب کیا دیتی ہے, لا کے دیا ہوتا تو وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں. بہرحال سیدہ کا جواب کیا تھا, کتنے خوبصورت جملے تھے. اللہ اکبر. سرکار عائشہ صدیقہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اپنے بابا کی طرح تھی, بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کہا کرتی تھی, موتیوں کی طرح ان کے الفاظ جھڑا کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے. جب مولا مشکل کشا نے کہا گھر میں کچھ ہے تو سیدہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت سے تقریباً مہینہ بھر گزر چکا ہے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ذرا اندازہ تو فرمائیں, فاقہ کشی کا انداز, بیان کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیں. ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے
एक महीना कमो बेश हो गया है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, अगर तुम मुझे बता देती तो अच्छा होता, आपने बताया नहीं। तो सैयदा कहती, मेरे सरताज मैं कैसे बताती, आप तो मसरूफ थे अल्लाह की राह में, आप तो जंग के माहौल में मसरूफ थे, मैं आपको अजियत कैसे देती, मैं आपके जहन पे बोझ कैसे डालती। मौला ने फरमाया, ठीक है मैं अभी इंतजाम करता हूं। और उसके बाद आप जो है बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपने सोचा कि कहीं कोई मजदूरी कर लेते हैं, किसी का कोई सामान वामान उठा देते हैं, कुछ रकम मिल जाएगी। खुदा की शान ये कि जैसे ही बाजार में पहुंचे, शाम का वक्त था, लोग बाजार से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। दूसरे मुल्कों से काफला मदीने मुनव्वरा में सामान लेकर आया, अगली सुबह को उसको फरोख्त करना था। मौला वहां पहुंचे, वो उनके लिए अजनबी थे, ये उनके लिए अजनबी थे, इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग थे। आपने फरमाया कि आपका सामान मैं उठा सकता हूं और मैं आपके सामान उठा करके उसकी जगह रख दूं तो कितना दोगे? उन्होंने कहा, आप कितना लोगे? कहा, जो दोगे मैं ले लूंगा। उन्होंने कहा, अगर हमारा सारा सामान उतार दो हम आपको 2 दिरहम देंगे, लेकिन ए जवान, इसके लिए पूरी रात गुजर जाएगी। जिसके लिए खैबर उखाड़ना मुश्किल न था, उसके लिए सामान उतारना क्या मुश्किल था। चंद जो वो मिनटों के अंदर वो काम कर दिया। वो भी हैरान थे कि इतनी जल्दी भी कोई काम कर सकता है। उन्होंने 2 दिरहम दिए, 2 दिरहम में से 1 दिरहम आपने सदका कर दिया और 1 दिरहम से जो है आपने पनीर खरीदा, घी खरीदा, आटा वगैरह जो भी चीजें थी खरीदा और खरीद करके लाए और लाकर सैयदा को दिया, खाना तैयार करो। सैयदा ने वो सब कुछ मिलाया और मिला करके 3 रोटियां तैयार की। 1 रोटी मौला, उसमें 3 ही रोटियां बनी। 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा को दी, 1 रोटी फिजा को दी और 1 रोटी के टुकड़े करके बच्चों को खिला दिया। और खिलाने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब खा लिया, फिजा ने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा, फातिमा आप कह रही थी कि महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला, तो आपने खाया कि नहीं खाया? कहने लगी कि असल में 3 ही रोटियां बनी थी, 1 आपको दे दी, 1 फिजा को दे दी और 1 बच्चों को खिला दी। अब तो रोटी बची ही नहीं, इसलिए हमने तो पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा पहले बता दिया होता हम अपनी रोटी से आपको खिलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज करती है, अल्लाह अल्लाह। फरमाती है कि बहुत दिनों से आप भूखे थे और वो भी जंगजू आदमी इतने दिनों के बाद खाए और उसकी रोटी में मैं हिस्सेदार बन जाऊं, मुझे गवारा न था, इसलिए मैंने अपने आप को उस वक्त कुछ देर के लिए आपकी नजरों से ओझल कर लिया था। अली आपने खा लिया, बस मैंने खा लिया। और ये कहने के बाद जो है अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं, फातिमा कयामत तक तेरे बाद अब तुझ जैसी बीवी को न पुश्ते फलक देख, न पुश्ते जमीन देख सकेगी, न चश्मे फलक देख सकेगी। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, ये अंदाज था। अल्लाह अकबर। आज तो औरतों का हाल ये है, हर शादी में नए कपड़े चाहिए, बाइक पर घूमने का मुतालबा अलग है, पार्कों में ले जाने का मुतालबा अलग है। शौहर मेरी बात नहीं मानता तो उसमें जो वो मामला तब यहां तक जाते हैं कि औरतें आमिलों के पास जाती हैं, बाबाओं के पास जाती है, और जो वो यहां तक के मुशरिकीन के जो वो इबादत खानों तक के जाती है। मेरा शौहर मेरी बात सुने, वो मेरी ही सुने, वो मेरा ही होकर के रहे और वो किसी की ना सुने, न मेरी सास से मोहब्बत करे, न मेरी नंदों से मोहब्बत करे, न उसके भाइयों से मुलाकात करे, बस वो मेरा ही होकर के रहे। ये हराम अशद हराम है। रिश्तों को तोड़ने वालों को शैतान कहा गया है, रिश्ते के तोड़ने वालों को लानती कहा गया है, रिश्ते के तोड़ने वालों को जहन्नमी कहा गया है। तू बीवी है मेरी बहन, तेरा हक अपनी जगह है, उसकी मां का भी हक है, उसकी बहनों का भी हक है, उसके भाइयों का भी हक है। याद रखो, ये जादू वादू के चक्कर में ना पड़ा करो, इसलिए कि बदतरीन अजाब है उनके लिए। और जो शौहर के लिए जादू करती कराती है, ऐसी औरतें तो लानती है, लानती। यहां तक फरमाया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह उन पे निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, खुदा के लिए अगर शौहर की प्यार की मोहब्बत ही चाहती हो तो ये तावीज़ात से
से मुमकिन नहीं है, ये जैव जादू से मुमकिन नहीं है। अगर शौहर की मोहब्बत चाहती हो, उसके लिए कुर्बानी दो, उसके साथ वफा करो, उसके साथ मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह अकबर कि शौहर के दिल में अल्लाह तुम्हारी अटूट मोहब्बत पैदा कर देगा, कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पैदा कर देगा। जादू के जोर से की गई मोहब्बतें खत्म तो हो सकती है, लेकिन जो मोहब्बतें मेरा अल्लाह पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नईम रज़ा। अगर आप गलती से भी वीडियो को प्ले कर दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको हमेशा कुछ नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपको दीन इस्लाम सीखने को मिले। दोस्तों, आजकल के जो औरतें हैं अपने शौहरों से ज़ुबान दराज़ी करते हैं, इस कदर ज़ुबान लगाती हैं कि मत पूछिए। औरतों का अपने शौहर पे जो हुकूक है उसे पहचानना चाहिए, उसे जानना चाहिए और उसे अदा करना चाहिए। और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों का हुकूक को अदा करें। ये नहीं कि शौहर अपनी बीवी का हुकूक अदा ना करे और सिर्फ बीवी अपने शौहर का हुकूक को अदा करे। दोस्तों, इससे फिर आपकी दूरियां बढ़ती हैं, दिल की तकलीफ़ें होती हैं और इसी तरह रिश्ते ख़राब होते चले जाते हैं। फिर हमसे बड़े आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब के अगर पूरे बयान सुने होंगे तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल चुका होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जा रहे थे तो देखा कि कुछ औरतें जहन्नम में हैं जिनका मुँह कुत्ते की तरह। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत जिब्रील से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत की औरतें हैं जो कुत्ते के मुँह होकर जहन्नम में गई हैं। वजह ये थी कि अपने शौहर से ज़ुबान दराज़ी क्या करते थे। कुर्बान जाओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हज़रत अली की बीवी पर, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन की माँ पर जो फाका कशी के वक्त भी अपने शौहर से ज़ुबान दराज़ी नहीं की। आजकल के बीवियाँ ये होती है कि अपने शौहर को कहती है अगर तुम खाना नहीं दोगे तो मैं चली अपनी मायके। और उनके मायके वाले भी, उनके यानी लड़की के माँ बाप भी ये चाहते हैं कि थोड़ी सी अनबन हो, घर में बुलाते हैं, कहते हैं मैं देख लूँगा तुझे, ये करा लूँगा, फलां करा लूँगा, अच्छे कोट कचहरियाँ की चटनी खाना खिला दूँगा, तुम उसके बच्चे को फेंक पे चले आओ, मैं पाल लूँगा। क्या 18 महीना पहले तुझे नहीं पाला है, इसके बाद ही पाल लूँगा। तो दोस्तों, शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों का हुकूक को अदा करें और बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों का हुकूक को अदा करें। दोस्तों, हमसे बड़े आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब के पूरे वीडियो को सुने। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जब घर में फाका कशी का वक्त था फिर भी अपने ज़ुबान से एक लफ्ज़ ऐसे नहीं बयान की जिससे हज़रत अली के दिल तो ठेस पहुँची। यहाँ तक कि जब जंग से वापस आ रहे थे हज़रत अली, उनके मरहम पट्टी किया करती थी। और बिल्कुल जब घर में खाना नहीं था तो उन्होंने जंग से वापस आने के बाद जब अपने कारोबार करने के लिए यानी काम ढूंढने के लिए निकला तो एक काम करने के बाद जो 2 दिरहम मिली, 1 दिरहम सदका किया, दूसरा दिरहम को उसे अपने खाने का सामान खरीद कर लाया जिससे 3 ही रोटी बन पाई थी। एक हज़रत अली को मिला, एक फ़िज़ा का और एक 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को खिलाया गया। हज़रत अली पूछते हैं कि फ़ातिमा 1 महीना से फाका कशी का आलम चल रहा है तो क्या आपने कुछ खाया? हज़रत फ़ातिमा कहती हैं मेरे सरताज मैं क्या खाऊँ, मैं पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हज़रत अली कहते हैं फ़ातिमा बताना तो चाहिए, मैं अपने हक़ के हिस्से की रोटी आधे दे देता। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं आप जंग से आए हैं और फाका कशी के आलम में, जंग में मुझे पता है क्या क्या करना पड़ता है, कितने तकलीफ़ें हुआ करती हैं। फिर मेरा ये दिल गवारा न किया कि मैं आपकी एक रोटी के में उसमें भी हिस्से करके खा लूँ। दोस्तों, यहाँ से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत के तरीक़ा सीखने का मिलता है। दोस्तों, हमसे बड़े आलिम दीन सैयद अमीनुल कादरी साहब के वीडियो को पूरा सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरन। आफिया।